Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear learners. Welcome to the Chase Academy and a very warm welcome to English Grade 9. I hope, students, that you are doing well. In the last lecture, we talked about tenses, and it was actually a preceding lecture for the previous lecture before that, which was about tenses. तो हमने tenses का lecture किया था, हमने उसे revise किया था. In that, we talked about फ्यूचर टेंसेस. फ्यूचर टेंस हमने पढ़े थे. अब आई होप आप लोगों ने उसकी वर्कशीट्स और उसकी रिसोर्सेज जो हैं वो सॉल्व कर ली होंगी. जो आज का हमारा एसएलओ है, दैट इज रिलेटेड टू मेकिंग द सेंटेंसेस. यस, नाउ वी हैव लर्नड के हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की सारी उसकी कंप्लेक्सिटी समझ ली, उसकी वेरिएशंस को समझ लिया था. Future simple, future continuous, perfect, and perfect continuous, right? Now, why did we learn the tenses? To make correct sentences. ताकि हम सही जुमला बोल सकें, correct sentence लिख सकें in our essays, in our different kinds of texts, in our answers. So, for that purpose, we need to make sentences. How do we construct sentences? We have talked about their sentence patterns. हमने सेंटेंस के पैटर्न्स देखे थे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और इस तरह के प्रीवियस यूनिट के लेक्चर में हमने वो सारे पैटर्न्स को देख लिए थे. नाउ देयर आर मोर थिंग्स इन अ सेंटेंस, वी विल टॉक अबाउट इट. द एसएलओ सेज दैट कंस्ट्रक्ट, यानी हम बनाएंगे सेंटेंसेस using the sentence patterns and structures learned in the earlier classes. Now, when we are talking about structures, patterns को तो हमने cover कर लिया. What makes a sentence a sentence? What are the things that you can find in a sentence? We will talk about some concepts about that. We will see what is a subject. किसी भी जुमले में, किसी भी sentence में subject क्या है, कैसे उसे identify करें. What is a predicate? How do we identify it? We will look into it with examples. So, here goes your vertical linkage of grade 8. उसमें भी आप देखें, analyze and construct sentences using the sentence patterns, and this is the identical, the same SLO जो कि grade 8 से चलता आ रहा है, इसी को हमने grade 9 में डिस्कस करना है. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की, उसकी बनावट की, सेंटेंस कैसे बनता है. सो वी नो दैट एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट. इवन द वर्ड ए एंड द, इसको भी हम एक नाम देते हैं. दिस अ कैटेगरी कॉल्ड आर्टिकल्स. There are nouns, different parts of speech. All of these words that we see, they are important and they are named something. They are categorized. Now, every word in a sentence serves a specific purpose. हर लफ्ज का किसी भी सेंटेंस में एक मकसद होता है within the structure of that particular sentence. मखसूस according to the rules of grammar. Since we are talking about grammar, so according to the rules of grammar, sentence structure can sometimes be quite complicated. So बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए. क्यों? क्योंकि ग्रामर के रूल्स उसके अंदर अप्लाई होंगे. For the sake of simplicity, however, the basic parts of a sentence are discussed. We will discuss some basic parts of sentence. Now, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम मिनिमम स्टार्ट करेंगे, मिनिमम यूनिट. What makes a sentence a sentence? What is the minimum unit of constructing a sentence? They are subject and predicate. ठीक है, हमें पता है सब्जेक्ट क्या है, डूअर ऑफ एन एक्शन, या जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट है. और जो बताया जा रहा है, जो वर्ब है, जो भी बात आगे की जा रही है, वो प्रेडिकेट है. सिंपल. इस तरह हम देख सकते हैं कि हमने जूम इन नहीं किया, कि वो भी हम आगे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है. बट फॉर दैट वी हैव टू वेट. नाउ, सब्जेक्ट, predicate, object, and indirect object, and also complement. और complement भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है. सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं. The subject of a sentence is the person, place or thing.
कोई शख्स हो सकता है, कोई जगह जिसके बारे में हम बता रहे हैं, कि कोई भी चीज, एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। उस जुमले में जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन, विच इज सब्जेक्ट। ठीक है, द सब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। क्या बताता है हमें सब्जेक्ट? कि किसके बारे में बात हो रही है, क्या मकसद है जुमले का, हम क्यों ये बात कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। नाउ हमें बताता है सब्जेक्ट कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, द सिंपल सब्जेक्ट यूजुअली कंटेन्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। आपका जो सब्जेक्ट है वो किसी भी कोई भी नाम हो सकता है, या उसकी रिप्लेसमेंट में सब्स्टिट्यूट में जो वर्ड यूज करते हैं, प्रोनाउन। And that can include it can include modifying words, phrases, or clauses. For example, let's take the first chunk, the man. Noun है, man क्या है? Noun है ना? Yes, मोहम्मद noun है, common या proper? Common noun है। The article है, ठीक है, definite article है। हम एक मखसूस आदमी की बात कर रहे हैं, द मैन। सिर्फ मैन हमारा सब्जेक्ट नहीं है, यहां पे पूरा जुमला, ये पूरा हिस्सा द मैन, ये सारा हमारा सब्जेक्ट है। एक आदमी या वो आदमी, चाहे जैसे भी हो, है तो सब्जेक्ट। ठीक है, ऑलराइट। सो द मैन, ये हमारा सब्जेक्ट है। नाउ लेट्स रीड दी सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन देम। If we say Rahim's brother is quite sick, obviously किसके बारे में बात हो रही है? राहिम के बारे में, उसके ब्रदर के बारे में, राइट? राहिम्स ब्रदर। हम राहिम के बारे में बात नहीं कर रहे बल्कि उसके भाई के बारे में, लेकिन राहिम्स ब्रदर, ये पूरा हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और ये प्रेडिकेट है। ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। William Shakespeare wrote Romeo and Juliet and many other famous plays. ठीक है, what is the subject? William Shakespeare, ये पूरा नाम है उसका, और ये हमारा सब्जेक्ट है। और उसने क्या किया? उसने लिखा, और वो सारी डिटेल आगे, ये हमारा प्रेडिकेट है। लेकिन सब्जेक्ट क्या है? विलियम शेक्सपियर। द बॉयज वर प्लेइंग नियर बाय। ठीक है, the boys, we are talking about the boys, the cattle, the baby, my brother, the flowers, the cat, all right, यहां पे स्पेस है, the cat, our parents, the sun, ये सारा जो है, ये usually they are coming at the start of the sentence, they are all subjects। अब हम सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देंगे, या उसके या उसने कोई एक्शन किया होगा, दोनों केसेस में सब्जेक्ट इज देयर। इट यूजुअली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट से पहले सब्जेक्ट, एंड देन उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेडिकेट। व्हाट इज अ प्रेडिकेट? प्रेडिकेट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ वेरी ओल्ड वर्ड, जिसका मतलब है कि हम कुछ बताते हैं, कुछ फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड दैट वर्ड then became predicate। जैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं, कुछ बताते हैं किसी के बारे में, कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, so that part of the sentence is predicate। For example, the man builds a house। the man तो सब्जेक्ट है, builds a house verb, and then noun, और ये आर्टिकल। ठीक है, तो ये सारे मिलके क्या बनाया इसने? प्रेडिकेट। इसका मतलब है हमने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी? मैन के बारे में, और हमने ये भी बताया उसने बनाया। ये हमारा सिंपल प्रेडिकेट है। द मैन बिल्ड्स, बिल्ड्स हमारा सिंपल प्रेडिकेट है। अब क्या बनाया, आगे की इंफॉर्मेशन भी हमारा फिर कंपाउंड प्रेडिकेट या फुल प्रेडिकेट कहलाता है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। The subject and predicate make up the two basic structural parts of any complete sentence। कोई भी आप जुमला देखेंगे उसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा और प्रेडिकेट मिलेगा।
अब सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट, लेकिन सब्जेक्ट आप प्रेडिकेट के बाद भी आपको मिल सकता है। कई ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें प्रेडिकेट जो है वो पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में, लेकिन वो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट ही रहेंगे। वो आपस में पोजीशन चेंज करने की वजह से सब्जेक्ट या प्रेडिकेट आपस में चेंज नहीं हो जाएगा, बल्कि वही रहेगा। ठीक है। द प्रेडिकेट एक्सप्रेसेस एक्शन। प्रेडिकेट में क्या मिलेगा आपको? वर्ब भी मिलेगा, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, हर चीज मिलेगी। ठीक है। और बीइंग विद इन द सेंटेंस, द सिंपल प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब। यहां पे बिल्ड्स क्या है? सिंपल प्रेडिकेट। ठीक है। और बाकी हिस्सा जो है सेंटेंस का वो क्या है? कंप्लीट प्रेडिकेट। ऑलराइट। अब यहां पे देखते हैं हम, अमन एंड मोहम्मद, बी अटेंटिव नाउ। द हंटर कॉट द हेयर। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं सब्जेक्ट को। जी मोहम्मद, इसमें सब्जेक्ट क्या है? जी दी सब्जेक्ट है। दी तो सिर्फ आर्टिकल है। दी हंटर, यस, हंटर, शिकारी, जिसके बारे में हम कुछ बताने लगे हैं। क्या बताया हमने? ये हमारा सब्जेक्ट है। कॉट द हेयर, कॉट वर्ब और वो बाकी सारा। उसने खरगोश को पकड़ा। ठीक है। किसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी है? सब्जेक्ट के बारे में। और बताया क्या है? वो प्रेडिकेट है। अच्छा, अब इसमें सिंपल प्रेडिकेट क्या है? कॉट, जो कि कैच का पास्ट फॉर्म है। कॉट, ये हमारा क्या है? सिंपल प्रेडिकेट। ऑलराइट। नाउ अमन, सुमन सिस्टर्स आर गोइंग टू द क्लास। सुमन सिस्टर्स, यस, ये सब्जेक्ट है। व्हाट इज द प्रेडिकेट? आर गोइंग टू द क्लास, यस। बाकी जो है वो प्रेडिकेट है। What a timid little fellow the hare is. जी, what a timid little fellow the hare is. सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें। What a timid little fellow the hare is. No, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? No, सब्जेक्ट इज हेयर। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हेयर के बारे में, खरगोश के बारे में, राइट। और ये तो सब्जेक्ट है और बाकी सारा जो है ये प्रेडिकेट है। जैसे हम कहते हैं कि ये खरगोश कितना शरारती है, या मैं कहूं कितना शरारती है ये खरगोश। सब्जेक्ट क्या है? हेयर, खरगोश कितना शरारती है ये सारा हमने उसके बारे में कुछ कलाम किया, कुछ बोला, कुछ इंफॉर्मेशन दी, तो वो सारा पार्ट क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद भी आ सकता है, जैसे यहां पे आया। ठीक है। इसी तरह द वेसल वॉज अ मैग्निफिसेंट फाइव master. The vessel, and then this is the predicate. Who commanded the vessel? Yes. Who commanded the vessel? Subject, and then this part of the sentence is the predicate. Simple. अब ये हमारा कम से कम बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस को समझने का। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को अलग करें, आइडेंटिफाई करें, एंड दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जिसके ऊपर एक्शन डायरेक्टली लग रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। जैसे आई थ्रू द पेन ऑन द फ्लोर। ऑलराइट। कहां पे फेंका? ऑन द फ्लोर, एंड दैट इज द object who's receiving the action. All right. Direct object receives the action of the sentence. The direct object is usually a noun or a pronoun. For example, the man builds a house. The man, subject, और ये सारा हिस्सा क्या है? Predicate. ठीक है। Builds is the simple predicate. सिंपल प्रेडिकेट। अच्छा, आदमी ने बनाया, अब उसने बनाया, वर्ब,
वर्ब किस पे अप्लाई हुआ? हाउस। हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्योंकि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है यहां पे और उसी पे डायरेक्टली एक्शन लग रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। Indirect object indicates to whom or who for whom the action of the sentence is being done. For example, the man builds his family a house. आज ये हमारा सब्जेक्ट है the man और ये सारा प्रेडिकेट है builds his family a house. अब हाउस तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो उसने बनाया, किसके लिए बनाया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिसने इनडायरेक्टली एक्शन को रिसीव किया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। द मैन बिल्ड्स देम अ हाउस, देखें यहां पे नाउन था, यहां पे प्रोनाउन। इसका मतलब है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। वेरी गुड। ही गेव मी अ गिफ्ट, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ही गेव मी अ गिफ्ट, indirect object is me, direct object is gift, me is indirect object। इसी तरह she bought John a book, she bought John a book, a book is the direct object and John is indirect object। उसने खरीदा, क्या खरीदा? जॉन को तो नहीं खरीदा, बुक को खरीदा ना। डायरेक्ट एक्शन बुक पे लग रहा है तो बुक विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड जॉन विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट। वो वर्ड्स जो कि हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, सेंस बनाएगा, दैट इज सब कॉम्प्लीमेंट। इफ इट इज referring to the subject, then it will be called subject complement, and if it is referring to the object, then it will be called object complement। all right, यहां पे देखें, the man is a good father। all right, the man is a good, अगर मैं ये कहूं the sentence is not complete, I need a word, I need a complement, father, which is a noun। तो father, अब ये कॉम्प्लीमेंट किसको पूरा कर रहा है? हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है? नो, दिस इज रेफरिंग टू द सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। द मैन सीम्स काइंड, द मैन सब्जेक्ट, सीम्स काइंड। अगर मैं कहूं द मैन सीम्स, डजंट मेक एनी सेंस। द मैन सीम्स, वो आदमी लगता है क्या? काइंड। सो ये जो वर्ड काइंड है विच इज एन एडजेक्टिव, है तो ये एडजेक्टिव लेकिन ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, उसे फुलफिल कर रहा है। इसी तरह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में सेम थिंग, लेकिन कॉम्प्लीमेंट किसको पूरा करेगा? ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, कॉल मी पैरानॉइड बट आई एम प्रीटी श्योर समवन इज वॉचिंग अस। मुझे बेशक पागल कहो लेकिन मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है। Call me paranoid. Now this word is actually object complement. We made the room extra cozy for our guests. ठीक है, we made the room extra cozy. Extra cozy is actually referring to the object. An object complement is a word or group of words, एक लफ्ज भी हो सकता है और एक से ज्यादा लफ्ज भी हो सकते हैं, that appears in the predicate of a sentence and describes or renames the direct object of the verb in a way that is essential to completing the meaning of the sentence. Most of the time they are nouns. All right, your object complement can be noun, adjective or noun or adjective phrase. Adverb नहीं होगा, यानी हम ये नहीं कहेंगे he looked horribly, हम कहेंगे he looked horrible, horribly नहीं कहेंगे। ठीक है, आपका कॉम्प्लीमेंट आपका एडवर्ब नहीं हो सकता, दैट इज द रूल। नाउ आफ्टर लर्निंग अबाउट these, make sentences in your notebook according to the sentence structure। make sentences and then point out ये subject है, ये predicate है। make sentences with direct and indirect object and then identify which one is direct object receiving the action directly and which one of them is receiving the action indirectly। and this is the homework that you will do। the worksheet is actually 2 or 3 pages long। subject and predicate को identify करेंगे, then you will identify your complements and your direct or indirect object, and this
sums up the lecture for today. All these resources will be provided once you are done with the lecture. Thank you so much, students. This is all about today's video lecture. I hope that now we have understood what a sentence is made up of. It is minimally made up of a subject and a predicate. And then there are your object, direct or indirect, and your complements, subject or object complement. Inshallah, tomorrow we will talk about another SLO. Till then, practice this as much as you can. Take care of yourselves, and Allah Hafiz.